वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। Last one. No, it's just that if someone is like not a Christian, like what do you think happens like after they die? After they die, if they're not a Christian? Yeah, because he was talking about like eternal life, like heaven, like everything. Right. What do you do then? I'll answer that from a pause Christian करने को। perspective, then you can answer from a Hindu Yeah, I'm perspective. just curious. Yeah, so from a Christian perspective, पॉज करने को। ओके, वीडियो सही आ रही है ना? किसी को अटक तो नहीं रही ना? थोड़ी अटक रही। थोड़ी अटक रही थी ना? ओके, अभी जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, राइट? वीडियो इंग्लिश में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो लड़की ने पूछा है आफ्टर लाइफ के बारे में, यानी कि मरने के बाद का जीवन उनके लिए, जो कि नॉन क्रिश्चियंस है, जो क्रिश्चियंस नहीं है, उनके लिए मरने के बाद का जीवन कैसा होगा, ये क्वेश्चन है लड़की का। ठीक है, प्ले करो। it's all about giving up yourself and worshiping God, because we all worship in some kind of way, some kind of thing, right? I mean, the best fiction writer probably in the last 100 years, who wrote Infinite Jest, gave a Kenyan college address where he said, we all worship something. If it's something on this earth, it will eat you alive, whether it's relationships, money, you name it. So we believe in Jesus Christ. We believe in God outside of us. By accepting God, we empty ourselves, grow a trusting relationship with Christ, and that is how you have eternal life with Him. But that does not mean somebody over in India who's never heard the name of Jesus Christ is going to hell. वीडियो अटक रही है यार काफी तुम्हारी। है ना? अटक रही है ना रिक्शा? अगर कोई आप में से करना चाहे तो कोई कर सकता नहीं, है कोई नहीं। वैसे। एक काम करो, प्ले करते रहो, क्योंकि वीडियो अटक रही है बट वॉइस चलती जा रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, प्ले करो। वॉइस मेन पार्ट तो वॉइस का ही। हाँ, करो। Hell. No, Because no, yeah, I get that. you get that, okay? Yeah. So from a Hindu perspective, see, I think you should be out here. Maybe not with the same kind of voice as him, because you guys are slightly hardwired differently. But I do think sometimes you should maybe be on this corner. That makes a great point. Thank you for talking out here. I appreciate it a lot, okay? But I do think I've new friends, and I've been to their homes, and I've had conversations with two different women who said to me, we're in different caste systems, and so one is slightly more valuable than the other. And it was a very awkward conversation. But I think for you to love me would be to come out here and Okay, say, एक मिनट hey, pause Stuart, करना। you have a slightly bad sense of Pause karma. करो। हेलो। सो क्वेश्चन था आफ्टर लाइफ के बारे में, राइट? कि मरने के बाद जो नॉन क्रिश्चियंस है उनकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, राइट? हाँ, सो क्वेश्चन था कि मरने के बाद में नॉन क्रिश्चियंस की ट्रीटमेंट कैसी होगी आफ्टर लाइफ में। तो यूजुअली आंसर उसके बारे में दिया जाना चाहिए, जो सेंसिबल व्यक्ति होगा वो टॉपिक पे बात करेगा। बट इसमें पता नहीं कहाँ से जो स्टुअर्ट है वो कास्ट को लेकर के आए। बेसिकली कास्ट को इसलिए लेकर के आए ताकि जो व्यक्ति है वो डिफेंसिव हो जाए, वो सही से आर्गुमेंट्स ना दे पाए। ठीक है, डिफेंसिव होकर के जो कहा जा रहा है उसको चुपचाप सुन ले। और ये यूजुअली यूज किया जाता है, ये टैक्टिक जो है। बेसिकली आप कास्ट बोल देते हैं तो फिर सामने वाला जो हिंदू है वो डिफेंसिव हो जाता है कि यार अब क्या बोलूँ, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बोलने। ठीक है, तो ये टैक्टिक होती है। प्ले करो। Because you've been living a certain way, I want to help you not come back as a cockroach. So I'm going to help you and communicate what a good type of lifestyle is according to the Hindu faith, rather than just saying, don't push your faith on somebody, because that's considered proselytizing. Well, by claiming not to push your faith on somebody, that's also a form of proselytizing. Maybe it's a form of quieter proselytizing, but see, this sweet woman right here, I am very impressed by her, and yet the same thing that she would. Okay, so क्या नाम है इसका? नाम भूल जा रहा हूँ। स्टुअर्ट कह रहा है कि अगर आप प्रोसेलिटाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह की प्रोसेलिटाइजेशन है। या आप ऐसे प्रोसेलिटाइजेशन करने से किसी को रोकते हैं, किसी को प्रचार करने से रोकते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रचार है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आर्गुमेंट इनका ऐसा है कि अगर आप जाकर के किसी के कान में बहुत जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे नॉर्मल भी किसी कान में जाकर के बार बार उसको पोक करते हैं,
और वो बदले में चिल्ला करके आपसे कह देता है कि रुक जा भाई मत कर, तो वो भी एक तरह का वो भी है, लाइक वो भी एक तरह की इनकन्वीनियंस पैदा करना ही है दूसरे के लिए। तो बेसिकली अगर कोई अगर आपके लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर रहा है, उसको रोकना भी इनकन्वीनियंस है और वो भी गलत है, तो हम रोके भी ना उसको। प्ले करो। Was doing, she was basically calling him intolerant for the way he was communicating an exclusive truth. She was communicating an even more intolerant exclusive truth, because she was saying she had this kind of 30,000 view of all religions, and that they are either the same or that they should not be communicating their truth in a certain way, when 87% of the world is making exclusive truth claims about their own religions. So what's more exclusive and intolerant? My thing is like, okay, so you guys are like out here like preaching, like spreading the word. Like I get the. Hopefully not preaching too much. Okay, no, but like, I want to be PC. okay, but like spreading the word. Okay, we'll say that. But the thing is like, Hinduism is a very accepting religion. Like obviously, like Yep. you have to be born into Hinduism, but you can still practice it as a religion. But, like okay, I'm speaking from my experience, like how I grew up. Nobody like goes around like. I agree, but Like on- it wasn't Like no one spreads the word like that. Like if someone is interested and want to come, like the arms are always open, but no one avidly goes out and like spends their time like doing this. Why not? No, but I'm asking like why help do me. you guys? Why aren't you doing that though? If my karma is bad and I'm headed towards being a cockroach or something worse than a cockroach, why wouldn't you come and talk to me? But the thing Help is, me like, out of it. but, Help me like, out of my ignorance. I just don't understand. Like I've had Hindus come up to me and offer different paths than the ones that I'm communicating. yeah, that's fine. But like it's I just don't. So you disagree with the style Yeah. of communication. Yeah, that's fine. Okay. But again, But like, the atheist department at numerous Ivy Leagues, especially Dartmouth right now, has put out different articles in their papers saying if you are a Christian or another faith that claims some type of eternal existence through their path, you have the moral obligation to be doing this right now. That was the Atheist Society at Dartmouth University. I mean that's very. पॉज करो जरा, पॉज करो, They're being honest. They're saying पॉज करो। हाँ हाँ। सो जब पूछा गया है कि लाइक आप क्यों इस तरीके से जो है प्रचार करते हैं, सीधे सीधे, मतलब प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लाइक पीछे लगते हैं और जिस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं, दिक्कत उससे है। तो एक बार एलेक्स ओकॉनर से इसकी डिबेट हो चुकी है, एक्चुअली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जो एथिस्ट का कोई ग्रुप है बेसिकली, और उसने रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला है, जिससे मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप बिलीव करते हैं, इफ यू डू बिलीव कि जो क्रिश्चियन फेथ को नहीं मानता है वो क्रिश्चियन फेथ को ना मानने के कारण फैल जाएगा, तो ये आप पे बर्डन है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप जाकर के प्रीच करें उसको क्रिश्चियनिटी, जिससे मैं एग्री करता हूँ। ये ऐसा ही है कि अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला जो है वो किसी का मर्डर करने जा रहा है, तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वायलेंस का भी यूज करें उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो मर्डर करने जा रहा है, बट इससे वो बिलीफ जस्टिफाई नहीं जाता। ठीक है, तो अगर कोई ये मानता है कि मैं जाकर के मर्डर करने वाला हूँ किसी का, और उस कारण से वो मुझे फिजिकली रोकने की कोशिश करता है, इवन मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है, तो मोरल जस्टिफाइड ये करने को, लेकिन इससे उसका बिलीफ जस्टिफाई नहीं जाता। ठीक है, तो उसका ये बिलीव करना कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, जस्टिफिकेशन उसके लिए चाहिए, राइट। तो ये वैसा ही है कि जैसे मुसलमान कहते हैं कि तुम जो है नरक में जलोगे, मान लो मेरी बात, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो नरक में जलोगे। बिल्कुल वैसा ही है, आप पे मोरल बर्डन पड़ता है कि आप जो है मुझे जन्नत की आग से, जहन्नम की आग से बचा ले, लेकिन उसके लिए पहले जहन्नम की आग को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। जी, डेथ प्ले करो। saying this is your worldview, if you truly believe that people are either going to be in heaven or hell and not some vague existence in between, then you better be preaching or at least communicating in some kind of way this type of truth. Now, my last piece, well, no, I'm not going to go there. All right. No, what is it? It was a question on Hinduism. Good, ask her. Sure, I might know. Well, this is a little bit tougher, a little more direct. So, as also a therapist, I'm also a mental health therapist. I'll go to the bedside of a person dying,
And when I am there, oftentimes I'm thinking about worldviews. Typically, it's my own worldviews, my own faith, right? Obviously, yeah. And I'm thinking about a suffering God, Jesus Christ, who is with us in our suffering. He's the only suffering God that I know of. Then I am thinking about something like atheism. If I am an atheist going to the bedside of my dying mother or close friend, see you later. Sorry, you're falling through a trapdoor into just timeless, spaceless eternity. एक मिनट Take pause care. करना. Depressing. ओके, सो दो बातें बोली इसने. एक तो ये प्रीचर है, वो क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट भी है, पार्ट टाइम थेरेपिस्ट, ठीक है. तो ये जब जाता है किसी व्यक्ति के डेथ बेड पे, जब वो ब्रॉली आ गया. अरे वेलकम वेलकम ब्रॉली, कहाँ थे यार? बस थोड़ा सा बिजी था, अभी फ्री हो गया हूँ, आ गया हूँ. करिए, स्ट्रीम कंटिन्यू Great, करिए. great, great. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो अच्छा, एक्चुअली सही टाइम पे आया ब्रॉली, क्योंकि ब्रॉली एग्नोस्टिक है, ठीक है. सो एथिज्म से ज्यादा क्लोज है और एक पॉइंट अभी एथिज्म पे है. तो अभी इसका पॉइंट है कि ये पार्ट टाइम थेरेपिस्ट है, और जब लोग जो है डेथ बेड पे होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो ये उनके पास जाता है, ठीक है, और जा करके ये कहता है कि चिंता मत कीजिए, आप जो है वो गॉड के लविंग हैंड में जाने वाले हैं ऑल, ठीक है, तो सब कुछ आपके अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो. और जब कोई एथिस्ट जाता है तो वो जाकर के उससे ये कहता है कि यू आर गोइंग टू डाई एंड फॉल इनटू इटर्नल. एक बार जरा बैक करना, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग सुनना चाहता हूँ इसके, थोड़ा बैक करके प्ले करो. करिए करिए, बैक करिए एक बार. Close friend. See you later. Suffering All God, right, all Jesus right. Christ, who is with us in our suffering. He's the only suffering ठीक है, God that I know of. Then I am thinking about something like atheism. If I am an atheist going to the bedside of my dying mother or close friend, see you later. Sorry, you're falling through a trapdoor into just Okay, timeless, okay, pause spaceless करो. eternity. Take care. पॉज करो, पॉज. हाँ. कोई एथिस्ट थेरेपिस्ट इतना पागल नहीं होगा जो ऐसी बातें करेगा. कोई एथिस्ट कोई भी थेरेपिस्ट किसी डेथ बेड पे किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता है कि आप जो है वो ट्रैपडोर में गिर रहे हैं, अब जा रहे हैं, फॉल कर रहे हैं इन टाइमलेस स्पेसलेस इटर्निटी. कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता यार. फर्स्ट. सेकेंडली है कि हाँ ब्रॉली कुछ कहना चाहते हो? कोई भी नहीं कैसा, यहाँ तक कि जैसे कि अभी हमने देखा, इनने कहा कि मैं अगर किसी एथिस्ट के पास में जा रहा हूँ, सो यू आर फॉलिंग, आई एम सॉरी. मतलब कि आखिरी के इंसान के आखिरी टाइम में हम कोई भी अगर जनरली होगा तो उस पे जाके बोलेगा तुमने अपनी लाइफ काफी अच्छे तरीके से जी हुई है, तुम्हारे जो भी पूरे ड्रीम्स है तुमने फुलफिल किए. अगर किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, पर हर कोई उसको जाके ये जरूर बोलेगा इन द एंड टाइम्स आपने अपनी लाइफ को पूरी फुलेस्ट जिया, अब आप बिल्कुल रेस्ट करिए कंप्लीटली. और आखिरी के जो मोमेंट होंगे हम ये चाहेंगे उसके साथ में कि वो आखिर के भी कुछ मोमेंट को हैप्पीली जिए, उसको रिग्रेट ना रहे किसी बात का डेथ के समय भी. अब डेथ के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं, ये तो किसी को पता नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिकली इसको प्रूव भी कर सकता है डेथ के बाद में क्या होता है. हर रिलीजन के अलग अलग अपने हाइपो ये थिंकिंग है कि भाई डेथ के बाद में ये होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट प्रूव तो कोई कर सकता है नहीं. और क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ये तो एक बिल्कुल, थेरेपी बिल्कुल. देना नहीं है. एंटायर पूरी हाँ, वीडियो में ये बताया गया हुआ है. हाँ, ये पूरे एंटायर वीडियो में ये बोला था कि भाई आई शुड लव एवरी पीपल अनकंडीशनली. पर भाई तुम एथिस्ट के पास जाके ये क्यों बोल रहे हो? तो एक टाइम पे मतलब उनको डिग्रेड करने जैसा हो गया. बिल्कुल. ये अगर कोई थेरेपिस्ट, भले वो एथिस्ट हो, अगर वो जाकर के किसी व्यक्ति को डेथ बेड पे ये बोलता है कि भाई भाई देखो अब तो तुम जो है गए, अब तो तुम टाइमलेस स्पेसलेस इटर्निटी में गिरने वाले हो, तो उसको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है. उसको थेरेपिस्ट लाइक उसको कोई दूसरा थेरेपिस्ट उसको रिकमेंड नहीं करेगा, सोसाइटी में उसकी लाइक वैल्यू कम हो जाएगी, उसको कोई अपने डेथ पे अपने रिलेटिव्स के डेथ पे बुलाएगा नहीं, ठीक है, उसकी इनकम खत्म हो जाएगी. ये मूर्खता है, ऐसा कोई नहीं कहता. फर्स्ट. और दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि कोई एथिस्ट कहेगा कि यू आर फॉलिंग इनटू अ टाइमलेस स्पेसलेस इटर्निटी, जबकि एथिस्ट ऐसा मानते नहीं है. एथिस्ट आफ्टर लाइफ पे बिलीव ही नहीं करते हैं ना. एग्नोस्टिक मतलब बिलीव कर सकता है कोई, लेकिन मेजरली जो एथिस्ट होते हैं वो किसी भी तरह के आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते. तो देयर इज नो इंडिविजुअल एक्चुअली, यू जैसा कोई है ही नहीं, तो कौन फॉल कर रहा है इन टाइमलेस स्पेसलेस इटर्निटी? कोई है ही नहीं, तो है ना ब्रॉली. हाँ, डेथ के बाद में तो मतलब कि जो एथिज्म का बिलीफ है ये तो सीधा सीधा बोल देता है आफ्टर लाइफ कुछ है ही नहीं. जो भी तुम्हारा जो सब कुछ था इन द लाइफ जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वही हो. तुम्हारी डेथ होगी, तुम्हारे ऑर्गन्स एक एक धीरे धीरे करके वर्क करना बंद कर देंगे. आफ्टर योर डेथ योर ब्रेन आफ्टर समवॉट, अगर मैं गलत ना हूं तो अबाउट एन
15 मिनट्स तुम्हारा ब्रेन भी वर्क करना बंद कर देगा और योर कॉन्शियसनेस इज गॉन और कुछ नहीं होगा जस्ट। तो ये तो एक तरीके से ये एग्जैक्टली, बताना हो गया, बिल्कुल इलॉजिकल बिल्कुल। बात तो होगी किसी एथिस्ट को जाके बोलना। सो हाँ, कुछ ऐसे एथिस्टिक पंथ हैं जो कि आफ्टर लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट्स बिलीव करते हैं, बट मेजरली जो एथिस्ट होते हैं, जिनके बारे में इनफैक्ट ये भी बात कर रहा होगा, क्योंकि ये उनके बारे में तो बात कर नहीं रहा है, क्योंकि वो मेजरली इंडिया में होते हैं। तो ये जिन एथिस्ट के बारे में बात कर रहा है वो नहीं बिलीव करते किसी तरह के आफ्टर लाइफ में, बट ये पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है कि भाई अब तुम फॉल कर रहे हो इन टाइमलेस स्पेसेस रिटर्निंग, एंड आप सफर करने वाले हो, जबकि कोई इंडिविजुअल रहता ही नहीं है उसके बाद सफर करने के लिए। ठीक है, प्ले करो डेप। Depressing versus an eternal existence, falling through a trapdoor into the loving arms of a God, a personal God, is radically different. Now, my Hindu friends, though, I also believe have a little bit of a problem when it comes to an understanding एक of मिनट रुकिए, suffering. Because it's the एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे इसमें वीडियो ने ये कहा हुआ है कि इफ समवन इज गोइंग टू डाई, एथिस्ट इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू मतलब सफर फॉर इटर्निटी। इस पे ये ऑब्जेक्शन रेज होता है ऑल लविंग गॉड के इसमें बारे में। एक ऑल लविंग गॉड है, वो अपने ही क्रिएशन को, अपने ही बच्चे को इटर्निटी तक हेल में भेजने वाला है जस्ट बिकॉज उसने उसके ऊपर यकीन नहीं करा। ये ऐसे कौन सा टाइप का ऑल लविंग गॉड हो सकता है? ऑल लविंग का तो उसे ही बोला जा सकता है कि मतलब जो अनकंडीशनली किसी भी तरीके से लव करे, अनकंडीशनली, चाहे वो उसे उसमें बिलीव करता हो या फिर बिलीव ना करता हो। बट जस्ट बिकॉज एक गॉड हमें एक बिलीव के बेसिस पे हमें इटर्निटी में फेंकने वाला है कि मैंने उस पर बिलीव नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ कि वो एथिस्ट कितना अच्छा हो, मॉरली गुड हो, राइशियस हो, बस जस्ट बिकॉज उसने उसमें बिलीव नहीं किया है, उसने इसको उसको इटर्निटी तक हेल में डालेगा। ये तो किसी ऑल लविंग गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स हो नहीं सकते बिल्कुल कभी भी। ये तो सीधा सीधा एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है एक ऑल लविंग गॉड के इसमें। मेरे को लगता है कि क्रिश्चियंस को अपनी ऑल लविंग के डेफिनेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फेयर पॉइंट है। लाइक अगर आप ऑल लविंग हैं तो वो लव कंडीशनल नहीं होना चाहिए। वो ऑल लविंग है तो वो सिंपली ऑल लविंग है, उसमें उस पे कोई बिलीव करे ना करे वो मैटर नहीं करेगा, उसको अपनी हर क्रिएशन से लव होना चाहिए। फेयर पॉइंट है। एक और बात हाँ इसमें आ जाती है हम्म, कि देखिए, अगर ऑल लविंग की बात में आ जाती है, हर कोई, चलिए कोई गलती भी करता है तो गलती करने के बाद में एक ह्यूमन भी होता है ना, एक सेकंड चांस देता है अपनी गलतियों को सुधारने का और अपनी गलतियों को उससे कुछ सीखने का, और अच्छा एक गलतियों को सीख के अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का। बट अगर हम क्रिश्चियनिटी के अगर थियोलॉजी देख लिया जाए तो तुम्हें एक ही चांस मिला हुआ है, चाहे तुम्हें पता हो कि वो तुम कुछ भी परफॉर्म करो, कैसा भी करो, तुम्हें नॉलेज हो या ना हो, बस एट द एंड तुम्हें जजमेंट डे के दिन देख लिया जाएगा तुमने क्या किया और तुम्हें हेल में पे फेंक दिया जाएगा। एक ऑल लविंग इंसान को साइड में भी रहने देते हैं, एक नॉलेजेबल इंसान भी हो तो वो भी सेकंड चांस देता है जरूर। ह्यूमंस सेकंड चांस देते हैं डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ ये कि वो उस पर ट्रस्ट उतना पहले लेवल का जितना नहीं करेंगे, बट स्टिल एक सेकंड चांस देते हैं हर कोई। ये तो एक बहुत ज्यादा ये बात हो जाती है कि एक इंटेलेक्चुअल बात भी नहीं होती है कि सिर्फ एक ही चांस देना और एक ही चांस में सब कुछ डिसाइड कर लेना। इनफैक्ट ब्रॉलिन ने जो बोला है उसमें एक और चीज ऐड की जा सकती है कि अगर ये क्लेम क्रिश्चियनिटी का ट्रू है कि डेथ के बाद आपको इटर्नल हेल मिलने वाली है, अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उस हेल का पर्पस क्या है? मतलब यूजली जो जस्टिस सिस्टम का पर्पस ही होता है, जस्टिस करना तो होता ही है, बट क्योंकि ये ऑल लविंग है, ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ज्यादा उठना चाहिए कि जो सफरिंग होती है इटर्निटी के लिए मरने के बाद, उस सफरिंग का क्या पर्पस है? क्योंकि यहाँ पे जो सफरिंग, किसी को आप जेल में डालते हैं, किसी तरह से सफर कराते हैं, तो वो बाकी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए होता है कि आप ऐसे मत करना वरना आप भी ये सफर करोगे। ठीक है, तो सोसाइटी को सही राह पे ले जाने के लिए ये कार्य होता है। बट उस इटर्नल सफरिंग का लाइक पर्पस क्या है? कोई पर्पस नहीं लगता है ना प्रॉली? हाँ बिल्कुल, उस वैसे का कोई नहीं है। जहां तक कि मैं तो देखता हूँ ये बस इटरनल हेल का कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया जाता है ताकि लोगों को अंदर एक फियर बना रहे कि हमें गॉड को मानना है। क्योंकि जस्ट बिकॉज एक फियर एक एग्जैक्टली। ऐसा फैक्टर होता है जो रिलीजन में बहुत मेजरली डोमिनेट करता है। अब कोई अगर थिंकिंग करने का सोचता है कि नहीं भाई मैं रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन रेज करूं, तो उसके ऊपर सीधा एक फियर का टैग लगा दिया जाता है, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते वरना तुम हेल में जाओगे।
इससे एक माइंडसेट भी, क्वेश्चनिंग वाला माइंडसेट भी डेवलप करने के लिए ऑब्स्टेकल बन जाता है ये। ठीक है, आपका थैंक यू। कंटिन्यू करिए वीडियो। डेथ कॉन्टिन्यू। The one-to-one correlation of if my mom drives and get into a car accident today and dies, there's a one-to-one correlation of her doing something wrong that caused her suffering and death. That's radically different from the Christian faith, which is not just the suffering God, but it's also there is death, there is confusion, there is all kinds of pain and suffering that typically has nothing to do with your bad deeds or bad karma. Okay, yeah. Ours is based on karma. Right. But do you see how that's problem? एक बार थोड़ा सा बैक करना, वुमन वाले पॉइंट से एक बार लेकर के आना जरा। So there is death, there is confusion, there is all kinds of pain and suffering. It's also about a personal God is radically different. Now my Hindu, though, I also believe have a little bit of a problem when it comes to an understanding of suffering, because it's the one-to-one correlation of if my mom drives and get into a car accident today and dies, there's a one-to-one correlation of her doing something wrong that caused her suffering and death. That's radically different from the Christian faith, which is not just the suffering God, but it's also there is death, there is confusion, there is all kinds of pain and suffering that typically has nothing to do with your bad deeds or bad karma. पॉज करना। ओके। पॉइंट जो उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि एक तो आपको एक सफरिंग गॉड मिलता है, एक ऐसा गॉड जो कि सफरिंग है। गॉड जीसस एक लौता ऐसा गॉड है जो कि सफरिंग गॉड है, और इस पॉइंट का पर्पस क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको कैसे कंफर्ट करेगा आपकी सफरिंग में, राइट? गॉड अपने आप में ही जो इतना सफर कर रहा है, तो और उसके बाद जो पॉइंट आया वो ये है कि अगर कोई औरत है, जैसे आपकी मदर है, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी उससे डेथ हो जाती है, कुछ भी है, वो उसमें चली जाती है, लाइक हॉस्पिटल चली जाती हैं, जैसे हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं और फिर सफ़र करती हैं। तो हिंदू फेथ में उनके इस रिजल्ट के लिए उनका कोई प्रीवियस कर्म है जो कि उनको यहाँ तक लीड करके लेकर के आया है, और ये एक बुरा पॉइंट है। और अच्छा पॉइंट क्या है? अच्छा पॉइंट ये है कि उनका कुछ बुरा ऐसा कर्म नहीं है प्रीवियस का, बट ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया। ये एक मेरिट कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक ये तो अगर हम कर्म को कंसीडर करते हैं तो उसके सफरिंग का एक कॉज तो है। इस वाले में इस सफरिंग का कोई कॉज ही नहीं है, ये तो कॉजलेस सफरिंग है। मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने सफर किया और उस सफरिंग के पीछे कोई कॉज भी नहीं है। तो ये तो ऑब्जेक्शन गॉड पे लगता है कि गॉड उसको सफर कर रहा है बिना किसी कारण। एटलीस्ट कन्फल थ्योरी में उसके सफरिंग के लिए कॉज तो बताया जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक ये प्लस पॉइंट कैसे है। ब्रॉली कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? एक मिनट में बस कुछ फ्यू सेकंड्स में अपना ओपिनियन रखता हूँ मैं इसके ऊपर। ओके प्ले करो बेटा। Karma. Okay, yeah. Ours is based on karma. Right. But do you see how that's problematic? Like, that does not fit my experience. When I'm dealing with death and dying folks, to go to them and say, sorry, you have cancer because you did something wrong, whether it was last week, yesterday, or the day before. No, but the thing is, like, it's not that minuscule. It's like what you've done throughout your life. So you know how, like, you guys look, okay, I'm a sinner, like, I've sinned. It's not like, oh, like, I tripped someone yesterday, so now I'm gonna go die in a car crash. It's like the accumulation of all the bad deeds that you've done. Okay. So that can lead up to, like, one moment, like, okay, like, हाँ, जैसे कि अभी पिछले इसमें हमने देखा था कि उसने कहा था कि एक कोई अगर लेडी है, किसी कार एक्सीडेंट से होके वो डेथ वगैरह हो जाती है या फिर किसी की एक्सेट्रा डेथ होती है, तो इसमें तो क्वेश्चन ये रेज होता है सबसे पहले कि हम दुनिया में जितने मल्टीपल रीजंस देखे किसी की भी ह्यूमन की डेथ होने की, इसके लिए तो वो अलग अलग रहता है। किसी की नेचुरली डेथ होती है, तो किसी की कार एक्सीडेंट में, किसी की ड्यू टू डिजीज डेथ होती है, या तो किसी की बाय एक्सीडेंशियल कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट मतलब कार एक्सीडेंट वाला नहीं है, रोड होने वाला। बाय एक्सीडेंट मतलब उसका पैर कहीं स्लिप हो गया, उस पे हेड पे डैमेज आ गया, तो ऐसा वगैरह। तो इसमें देखते हैं कि मल्टीपल रीजन से डेथ होती है लोगों की दुनिया में। अब जो थीस्ट होते हैं उनका ये क्लेम होता है
कि गॉड ने सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। इसका मतलब गॉड ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि कौन से पर्सन की डेथ किस तरीके से होंगी। अब दुनिया में जो लोग नॉर्मली मरते हैं नेचुरल डेथ, तो नेचुरल, हाँ, जिसकी नेचुरल डेथ होती है वो तो ऑल ओके है, बट व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज डाइंग फ्रॉम डिजीज? डिजीज के कारण उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, सफरिंग होती है। हम्म तो उसमें काफी पेन होती है, सफरिंग होती है। फिर उसके बाद में किसी के एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसको भी बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग होती है। उसके बाद में फिर उसको बहुत सफरिंग के साथ में डेथ होती है। फिर जो मतलब एक्सीडेंट से मर जाते हैं उनका अलग हो जाता है। तो भाई जब लोगों का ये क्लेम होता है कि गॉड इज ऑल राइशियस और गॉड Loving. जस्टिसफुल, तो गॉड हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट डेथ क्यों दे रहा है भाई? सबको देना तो भाई एक ही नेचुरल तरीके की डेथ दो और खत्म करो। लेकिन पर हम देखते हैं कि लोग अलग अलग इससे मर रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ आता है, हर एक थीस ऑब्जेक्शन रेस करते हैं कि जो दुनिया में सारी चीजें होती है एक वेल पैरामीटर डिसाइडेड होता है। ये सेकंड क्वेश्चन ये रेज होता है कि गॉड ने ऐसा कौन सा पैरामीटर डिसाइड किया था जिससे कि जो लोग अभी बाय एक्सीडेंट मर रहे हैं तो मैं उनको एक्सीडेंट वाली डेथ दूंगा, जो लोग नेचुरल मर रहे हैं मैं उनको नेचुरल वाली डेथ दूंगा, जो लोग डिजीज से मर रहे हैं उसको मैं डिजीज वाली डेथ दूंगा। हर किसी के बीच में एक्सचेंज भी तो हो सकता है। जो भी डिजीज से मर रहा है वो इससे कार एक्सीडेंट से मर सकता था, जो कार एक्सीडेंट से मर रहा है वो नेचुरली मर सकता था। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स वेल पैरामीटर डिसाइड नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हर कोई बिल्कुल। एक यूनिवर्स एक वेल ट्यून्ड है, पर मुझे यहाँ पे गॉड के वर्क में एक वेल ट्यून और एक वेल लॉ बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, जिससे कि काउंटर क्वेश्चन तो इन्हीं के ऊपर रेज होता है। ये आप कंटिन्यू करिए जी, थैंक यू। रुको रुको, तो ये एक्चुअली प्रॉली ने, रुको 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 रुको, पॉज करो। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ इविल उठा रहा है प्रॉली यहाँ पे कि लाइक, और ये चीज बिना कन्फर्म के जस्टिफाई भी नहीं हो सकती है कि आप जो है, अगर सभी आपके सब्जेक्ट से आप सबका अलग अलग टेस्ट क्यों ले रहे हो, आप सबको अलग अलग लेवल की सफरिंग क्यों दे रहे हो? अगर ऑल लविंग हो आप, अगर सब, इनफैक्ट नॉट जस्ट नॉन बिलीवर्स, इवन क्रिश्चियंस के बीच में सबकी अलग अलग सफरिंग्स क्यों हो रही है? लोगों के सफरिंग का की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट क्यों है ना ब्रॉड? यही पॉइंट है ना आपका? हाँ बिल्कुल यही पॉइंट है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि गॉड एक ऑल राइशियस है और गॉड जस्टिसफुल है, तो जस्टिस क्या हम्म बोलता है? हर किसी को एक ही लेवल का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और एक ही तरीके की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बट हेयर वी आर सी, डिस्पाइट ऑफ, अब हर गॉड के लिए तो हर कोई एक बराबर एक ही लेवल का होना चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स में ही देख लिए, कोई भी इंसान अपने चिल्ड्रंस को कम ज्यादा प्यार नहीं करता है। उसके लिए हर एक जो चिल्ड्रन होता है वो इक्वल होता है। बट हेयर वी कैन सी गॉड इज डूइंग द डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अस। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। इस पॉइंट से तो बिल्कुल लिख सकते, या तो गॉड डिस्क्रिमिनेटरी है, या तो गॉड अगर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है तो वो गॉड गॉड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है और इनफैक्ट ऑल लविंग नेचर भी उसका जो है वो खंडित हो रहा है इस। प्ले करो। Like, okay, you die in a car crash, whatever. But obviously, when that person is dying, you're not gonna be like, oh, like you caused, like, in a way, like you caused your own. Because everyone has to die, okay? That is like obviously the end game. But it's not like. It's like everyone has to die, but when you're on your deathbed, no one's gonna be like, oh, like you caused your own death. This is why, like, it happens for a reason. Like everything happens for a reason. That is the underlying belief. Oh yeah, I actually एक I बार can get on छोटे board with से that, Yeah. but I can't. अभी इसने लाइक एक पॉइंट उठाया है कि अ, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू में अगर कोई किसी का कार एक्सीडेंट होता है या किसी भी सफरिंग तरह की सफरिंग होती है, तो वो उसके प्रायर किसी कॉज से, प्रायर किसी कर्म से संबंधित होती नहीं है। ठीक है, इसको समाव ये मेरिट की तरह, मैं तो इसको मेरिट नहीं, बहुत ज्यादा गलत देखता हूँ इनफैक्ट, बट समाव इसको मेरिट की तरह प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो ये व्यू रख रहा था। अब जब इस लड़की ने कहा कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ कॉज, हर चीज के पीछे कॉज होता है, तो कह रहा है कि आई कैन गेट ऑन बोर्ड विद दैट। कैसे कह रहा है? लाइक अभी अभी जस्ट इसने कोई और बात बोली और अभी जस्ट कुछ और कह रहा है। फर्स्ट, सेकेंडली, जब लड़की ने लाइक बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, वो ये है कि कोई भी किसी के डेथ बेड पे जाकर के ये नहीं कहता, ऑल्दो ये कॉज है, ये मानते हैं, बट जाकर के ये नहीं कहता कि तुम तो मर रहे हो, तुम अपने कर्मों से, अब तो तुम गए, या उसको इस तरीके से कोई बिहेव नहीं करता। हाँ, प्ले करो।
रिग्रेट हाँ नहीं करता ब्रॉली get है on board with your bad deeds are just accumulated, so you're going to die a worse kind of death than the person over here, like this sweet little lady who was पॉज saying करो that she's just living for ब्रॉली। goodness. हाँ ब्रॉली बताओ। हाँ, देखिए जनरली बात जो आ जाती है जब एथिज्म और थीस्ट के बीच में, जब ये भी डिबेट होती है तो उसमें हर एक थीस्ट होता है, स्पेशली ये काउंटर पॉइंट रेस करता है, देयर इज अ यूनिवर्स एंड हर चीज के पीछे एक कॉज होता है, हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है, और उस हर हम्म, इफेक्ट के जो कॉज है उसको वो कहीं ना कहीं लिंक करके गॉड से लिंक कर देता है, हेंस प्रूव गॉड एग्जिस्ट। अब जब सेम हम्म, अब जहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पे रखा गया हुआ है कि हर किसी के डेथ के पीछे एक कॉज होता है, उसकी डेथ कैसी हुई है उसका एक कॉज बराबर वेल डिफाइंड है एज पर लॉ ऑफ कर्मा, ये एक लॉजिकल रीजनिंग है। अगर इसका बाय चांस देखिए, मैं तो एक एग्नोस्टिक हूँ, भले ही मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ, बट स्टिल इसकी थ्योरी बिल्कुल वेल लॉजिकल है। भले ही मेरे पास इस पे बिलीव करने के अभी मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन जिस समय मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे मैं इसे यकीन कर लूंगा, आई विल एक्सेप्ट इट। बट एज पर थ्योरी से देखे तो थ्योरी इज लॉजिकल, बट हम जब यहाँ पे देखे कि बिना किसी के कारण के किसी की कैसी भी डेथ हो जा रही है, तो हाउ वी कैन जस्ट डिफाइन इट। यहाँ पे तो कर्मा बिल्कुल आ रहा है एक्शंस की इसमें। एग्जैक्टली यही मुझे समझना है कि लाइक ये प्लस पॉइंट कैसे है। अगर किसी लेडी की का एक्सीडेंट हो जा रहा है और उसके पीछे कोई कॉज नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट कैसे है? इसको ये रख क्यों रहा है इसको यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लाइक। ये बिल्कुल एक नेगेटिव पॉइंट होगा यहाँ पे, वही इसलिए वही इसको बिल्कुल ये अवॉइड इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इसने मान लिया कि यस उसके पीछे एक कॉज था, तो उसे कर्मा की थ्योरी माननी पड़ेगी। अगर इसने कर्मा की थ्योरी मानी तो क्रिश्चियनिटी की बैंड बज जाएंगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो कर्मा थ्योरी मानी जाती है नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी रैंडम हो रहा है, हाँ यू कैन नॉट आस्क एग्जैक्टली क्वेश्चन। हाँ वो तो है ही लाइक। एंड अभी अभी तुम कह रहे हो मान नहीं रहे, लेकिन अभी जस्ट इसने फर्म कर दिया कि आई कैन गेट ऑन बोर्ड विद दैट। अभी जो इसने थोड़ी देर पहले कहा था, जस्ट अभी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसने अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। सो क्या ही कहें यार। आगे प्ले करो। वीडियो को थोड़ा सा काम So करिए, she's थोड़ा सा not going to suffer थोड़ा as opposed लीजिए, पीछे लीजिए, फिर प्ले करिए। कर दो। Oh no, this is why like it happens for a reason. Like everything happens for a reason. That is the underlying belief. Oh yeah, and I can get on board with that. Yeah. But I can't get on board with your bad deeds are just accumulated, so you're going to die a worse kind of death than the person over here, like this sweet little lady who was saying that she's just living for goodness. So she's not going to suffer, as opposed to the person perhaps who grew up an addict because maybe their parents were addicts, and so they had a type of bad deeds when it came to their alcoholism. So somehow they're going to suffer worse because they're worse people, and let's ostracize them. Versus this sweet lady who's supposedly living for I greatness. mean, not necessarily because you say that रुकिए, like your रुकिए, parents are addicts, so you're an addict, and like हाँ, तो यहाँ पे आप पहले आई क्वेश्चन रेस कर दीजिए, आप अपना ओपिनियन बताइए, फिर मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ। एम सॉरी, मैं एक्चुअली कहीं और ध्यान चला गया था मेरा। इटर्नल भैया आए हुए हैं, वेलकम करते हैं। नमस्ते भैया, इनफैक्ट आ चुके थे, अभी फिर वापस आए। मैंने देखा नहीं, आप बैठे हुए थे नीचे, मैंने देखा नहीं, सॉरी। हाँ, इस पे अभी जो बात हुई थी, इसने हाँ ये बात क्या हुई, बोला एक बार बताओ जरा। था डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ, यहाँ पे ये हाँ बता हाँ रहा आ है रही कि है आपकी आवाज आ रही है आपकी। टर्न एक काम कर दीजिए, आप वीडियो थोड़ा सा 30 सेकंड्स पीछे कर दीजिए ताकि भाई भी देख ले, साथ साथ हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पे एथिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू साथ साथ हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा पीछे ले चलिए। लीजिए। obviously when that person is dying, you're not gonna be like, oh, like you caused like, in a way, like you caused your own, because everyone has to die. Okay, that is like obviously the end game, but it's not like. It's like everyone has to die, but when you're on your deathbed, no one's gonna be like, oh, like you caused your own death. This is why, like it happens for a reason. Like everything happens for a reason. That is the underlying belief. Oh yeah, and I can get on board with that. Yeah. But I can't get on board with your bad deeds are just accumulated, so you're going to die a worse kind of death than the person over here, like this sweet little lady who was saying that she's just living for goodness. So she's not going to suffer, as opposed to the person perhaps who grew up an addict because maybe their parents were addicts, and so they had a type of bad deeds when it came to their alcoholism. इसमें ब्रॉली तुमको कुछ ऐड करना है? हाँ, इस पर तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक मतलब कि कर्मा की थ्योरी का रिलेटेड है।
यहाँ पे तो, पर मैं यहाँ पे ऐसा ये बोलना चाहता हूँ कि जो इसने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सफरिंग होती है, उसका आंसर नहीं दिया गया हुआ है, बल्कि गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया हुआ है। एज हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू ने जो गर्ल ने कहा है, उसने तो कर्मा का पॉइंट बताया है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डीड्स यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डेथ। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम रेज होती है, प्रॉब्लम ऑफ इवल। द प्रॉब्लम ऑफ इवल को लोग पता है ऐसे अवॉइड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज गॉड इज ऑल राइशियस और हमारे पास में फ्री विल है। बट ये फ्री विल का नजर नहीं होता, इसमें पॉइंट ये आता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इवल। इसमें कैसे कि कोई इंसान है, फ्रॉम बर्थ ही इज गोइंग टू सफरिंग फ्रॉम इस हैंडीकैप डिजीज। वो बचपन से हैंडीकैप होता है, इसलिए उसको पूरे ऑल ओवर जो लाइफ होती है उसको पेन होता है। सेकेंड चीज आता है कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसका एक हाथ डैमेज है या फिर पैर डैमेज है या फिर वो किसी पोलियो जैसे डिजीज से अगर उसको डिजीज है, तो उसकी लाइफ पूरी सफरिंग में जाती है और एट द एंड वो सफर करता है। और कुछ ऐसे देखे कि कईयों के बॉडी ऑर्गन्स डिसेबल होते हैं, कईयों का आईक्यू बहुत ज्यादा लो होता है, कई मेंटली अनस्टेबल होते हैं। और एज कम्पेयर टू हम दुनिया में कुछ लोगों को देखते हैं, वो बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन होते हैं, वो एक प्लेजर वाली लाइफ जिया करा करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड फ्रॉम द बर्थ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब जो भी लोग हैंडीकैप बॉर्न हुए हैं, फिजिकली डिसेबल बॉर्न हुए हैं, मेंटली डिसेबल बॉर्न हुए हैं, अब उनने तो ऐसा कोई एक्शन किए नहीं थे जिसके कारण उनको ऐसा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर उनने ऐसा कौन सा एक्शन किए थे जिसके कारण उनको ऐसी पनिशमेंट मिल रही है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। और लोग पता है प्रॉब्लम ऑफ इवल को बहुत इजीली अवॉइड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज टेकिंग अ नेम ऑफ सेटन। सेटन ने ये सारी चीज किया है। एक इमेजिनरी कैरेक्टर को कितना ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि सेटन तो किसी को बॉर्न, मतलब सेटन तो किसी को बनाता है नहीं, बनाने का क्लेम तो गॉड का है कि गॉड सबको बनाता है। तो गॉड ने पूरी दुनिया के हर एक इंसान को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया, सबको सेम भी नहीं बनाया, किसी को डिसेबल, किसी को बराबर, किसी को नॉर्मल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन है और कैसे पेन होता है। और सेकंड बात ये होती है, जिसको पेन होता है वही फील कर पाता है। अब जिस किसी को भी होगा, अब लोग तो फील करते नहीं है। जी मेरा यही पॉइंट था। मैं भी एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बॉडी भाई ने बहुत बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप ये जो ग्रेस वाले जो रिलीजन्स है, अगर हम उनमें देखो जो कर्मा को नहीं मानता है ना, आप ये जो एग्जांपल बॉडी भाई ने अभी दिया कि एक कोई जो है वो किसी एक हैंडीकैप को लेकर पैदा हुआ, ठीक है। अगर आप ये नहीं मानोगे कि वो उसको कर्मों का फल मिला है, जो कि हाँ ये डेफिनेटली उस आदमी के लिए या उस बच्चे के लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया रहेगा कि लास्ट लाइफ में कि मेरे को ये सफरिंग अभी मिल रही है। लेकिन अगर आप वो उसको नहीं बताओगे तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई देखो ये फिर भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी है कि मैं सारी जिंदगी सफर करूं, ठीक है। तो फिर ये क्या रैशनलिज्म है ना। तो ये तो फिर आप ब्लेम जो है पूरा गॉड को शिफ्ट कर दे रहे हो। वो भी एक चीज है, और ये बहुत बुरा एक कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है। इससे एक्चुअली लोग और भी भटक जाते हैं, जो गॉड के रास्ते से भटक जाते हैं। फिर एक्चुअली अगर कोई सेटन है ना, तो अपने मन में ही रहता है वो, और वो तभी पनपता है जब आप गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये वो स्पेस क्रिएट कर देता है, ये मेरे हिसाब से तो। और दूसरा ये भी चीज है कि जैसे अगर मैं फिट एंड फाइन पैदा हुआ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने अपने 14 साल की उम्र से मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और मैं सिगरेट पीते पीते इतना एडिक्ट हो गया कि बाय द टाइम आई एम 45 मेरे को कैंसर हो गया, ठीक है। एंड फिर मैं कैंसर में जाके बहुत पेनफुली मैं मरता हूँ, ठीक है। तो कोई आके मेरे को बोलेगा कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये भगवान ये सफरिंग सिर्फ टेम्पररी है, और भगवान ने भी सफर किया है तो आप भी सफर करो, ठीक है। ये मेरे लिए कितना कंफर्टिंग होगा। बल्कि अगर कोई मेरे को सही टाइम पे रोकता, 2 थप्पड़ लगाता और बोलता कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपनी लाइफ को खुद इसकी बैंड खुद बजा रहे हो, ठीक है। तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो ये कहना कि भाई मेरा कोई हाथ नहीं रहता है इन डैमेजिंग माय लाइफस्टाइल और कॉजिंग अ पेनफुल डेथ इज रॉन्ग। तो अगर ये एक इस लाइफ टाइम में हो सकता है, तो वाई नॉट इन द पास्ट लाइफ टाइम्स आल्सो। एग्जैक्टली हाँ मेरा पे एक और सो बोलो बोलिए आप बोलिए।
ओके सो बिल्कुल इनफैक्ट इटर्नल का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको प्लस पॉइंट बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई लेडी है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके वाले वर्ल्ड व्यू में उसके पीछे कॉज है, हमारे वाले में कोई कॉज ही नहीं है, तो उसको तो मतलब बिना भगवान ने कॉज के उसको मार सफरिंग दिया। देना, हाँ बिना कॉज के सफरिंग देना, इसका ब्लेम तो गॉड पे आएगा। ये अच्छी बात कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल। इसको ये प्लस पॉइंट की तरह कैसे रख रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली अभी ये लाइक थोड़ा सा लाइक आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भूल चुके हैं लोग। अभी जो हमने वीडियो प्ले किया था, लेकिन बेसिकली ये कह रहा है कि अ गुड लेडी इज नॉट गोइंग टू सफर, someone who is an addict is going to suffer। और इसको ही अगेन इसको प्रॉब्लमेटिक बता रहा है, जो अल्कोहल पी रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहा है, उसकी जो डेथ है वो सफरिंग के साथ होगी। ऑब्वियसली यार, अगर तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो तुम्हारी डेथ सफरिंग के साथ होनी चाहिए। अगर किसी लेडी ने अच्छा जीवन जिया है तो उसकी डेथ पीसफुल होनी चाहिए। इसको गलत क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। हाँ प्रॉली बताओ। हाँ, तो मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, जैसे कि हम देख सकते हैं और ये बोल रहे हैं कि बिना किसी कॉज के ही किसी की डेथ हो जाना, तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी के कॉज को इफेक्ट हो चुका है पर ये कॉज को डिनाई कर रहे हैं। अब इन द सेंस हम सेम देख लेते हैं बिग बैंग के केस में। अब जब भी बिग बैंग की बात आती है तो हर कोई बोलता है कि देयर शुड बी एक्सटर्नल कॉज टू हैपन बिग बैंग, क्योंकि बिग बैंग खुद से हो नहीं सकता है। तो भाई जब तुम ये मानने को तैयार हो कि बिना किसी कॉज की उसकी डेथ हो गई, तो तुम ये मानने को क्यों नहीं तैयार हो कि बिग बैंग भी किसी बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के हो गया, बिग बैंग भी ऐसी हो गया भाई, हो गया, बात खत्म। एवरीथिंग दैट एवरीथिंग हैज अ कॉज ना, तो एवरीथिंग हैज अ कॉज, तो फिर योर सफरिंग आल्सो हैज अ कॉज। इस चीज को आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल फेयर पॉइंट है प्रॉली। प्लस बिल्कुल fair point है। हाँ, एक और पॉइंट। इसमें हाँ एक और बात आ जाती है, जो दुनिया के लोग जो इतना सफर कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनका उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू हेवन एंड गो टू एंजॉय। पर जो लोग ज्यादा सफरिंग के साथ में इस वर्ल्ड में जी रहे हैं और जो कम सफरिंग के साथ में जी रहे हैं, उन दोनों को रिवॉर्ड तो भाई एक ही मिल रहा है भाई। यहाँ पे भी एक और इनजस्टिस हो जाता है, कोई यहाँ पे एग्जैक्टली। 50। हम्म। हाँ, नॉट यही जस्ट मेरा सफरिंग, point नॉट जस्ट सफरिंग, नॉट जस्ट सफरिंग कि कोई अच्छे से, कोई बहुत ज्यादा सफर कर, कम सफर कर रहा है और रिवॉर्ड दोनों को सिमिलर हो जा रहा है। जो कोई अच्छा जीवन जी रहा है और जो कोई बुरा जीवन जी रहा है, लाइक कोई अच्छा कर्म कर रहा है पूरे लाइफ, और कोई बहुत बुरी लाइफ जी है, किसी ने पूरे जीवन जो है बुरा कर्म किया है, अगर दोनों ही रिपेंट कर लेते हैं तो दोनों को सेम तरह का अवार्ड मिलता है, लाइक हेवन का अवार्ड मिलता है दोनों को, दोनों हेवन जाते हैं। तो यहाँ भी इंजस्टिस है। प्लस ब्रॉडली ने एक और पॉइंट बताया था, सफरिंग फ्रॉम बर्थ। अब हाँ, बस एक छोटा पॉइंट कि लाइक सफरिंग फ्रॉम बर्थ कर्म फल पे आपको जस्टिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्थ से जो सफरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, आपको एक पर्टिकुलर तरह का घर मिल रहा है, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर तरह के समाज में पैदा हो रहे हैं, आपको एक माहौल मिल रहा है, आपको ऐसा कुल मिल रहा है, आपको वेल्दी फैमिली मिल रही है या पुअर फैमिली मिल रही है, ये सारा कुछ कर्मफल से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्मफल को नहीं आएंगे तो सारा का सारा ब्लेम गॉड पे आएगा कि उसने जस्टिस किया ही नहीं। ये जो वर्ल्ड दिया उन्होंने, टेस्ट किया व्हाटएवर, उसमें सबकी सफरिंग या सबका जो प्लेजर है वो सेम नहीं रखा। तो जन्म से जो सफरिंग होती है उसका ब्लेम भी गॉड पर ही आएगा कि उसने वहां भी ट्रीटमेंट फेयर नहीं की, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को ऐसी कंडीशन में डाला कि वो ज्यादा सफर करे और किसी को ऐसी कंडीशन में डाला कि उसका जीवन बहुत ही सुखद जाए। तो ये पॉइंट भी अगर आप कर्मफल को कंसिडर नहीं करते हैं तो इसका ब्लेम भी गॉड पर ही जाता है। जी टनल भैया। हाँ जी, मैं इसी के इस सिलसिले में बोलना चाहता हूँ कि आज ही मतलब ट्विटर पे मेरी डिबेट हो रही थी विद सम मुस्लिम्स, और उनका भी यही यही कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, और कुछ हद तक ये क्रिश्चियनिटी में भी है, जो कि है वहां पे तो इनफैक्ट एक एक फेमस हदीस ही है, लेकिन उसको हम लोग एज एन एग्जांपल यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि कोई अगर बंदा 99 मर्डर्स कर दे और फिर वो रिपेंट करे तो उसको डिपेंड करे। मतलब पार्डन मिल जाएगा उसको, उसको क्या कहते हैं, उसको पैराडाइज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पैराडाइज और उसमें जिस मिलने वाली सारी चीजें इंक्लूडिंग हूर एंड ऑल। जी हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। और लेकिन जिसको वो मारता है शायद उसको ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ पाप रहे हों, तो शायद उसको ना मिले। तो ये एक बहुत ही इररिकंसाइलेबल डाइकोटोमी है मेरे हिसाब से, तो ऑफ ऑल दी ग्रेस बेस्ड रिलीजन्स, कि अगर ग्रेस यही है कि मतलब आपके सारे जो पाप है धुल जाएंगे, मतलब आपने 100 एक्सेप्ट कर लिया। मर्डर्स किए होंगे, लेकिन आपने एक दिन आपने बोला कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ और मैं क्रिश्चियनिटी ले लेता हूँ या फिर मैं इस्लाम ले लेता हूँ, तो क्या
फिर आप वही बोलोगे पुलिस वालों को कि भाई मेरे को अरेस्ट मत करो, मेरे तो मेरा तो आफ्टर लाइफ सॉर्ट आउट हो गया है, तो मेरे को इस लाइफ में सफरिंग मत दो। ठीक है, तो ये तो बात बनती नहीं है ना। तो इनफैक्ट मेरा मेरा ये मानना है कि जो कर्म फल वाले, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ एग्नोस्टिक्स भी हैं, कुछ अलग विश्वास रखने वाले भी लोग हैं, तो मतलब रिस्पेक्टफुल मैं कहता हूँ कि मेरा मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल बिलीफ जो है कि अगर आप जैसे कुछ जो कृष्ण भक्त जो होते हैं, इस्कॉन वाले जो होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप कृष्ण के साथ आप कृष्ण के पास आप उनको एक्सेप्ट कर लो तो फिर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। वो भी गलत है, वो भी बेसिकली वही एजेंडा पुश हो जाता है वहां पे भी। आप ये देखो कि आपने जो काम किया है उसका फल आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास होगा और भक्ति होगी तो आपको वो कष्ट सहने में आपको आसानी होगी, आपको इतना मुश्किल नहीं होगा वो कष्ट सहना। आप इनफैक्ट यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट, वो आपके लिए एक तपस्या हो जाएगी। या यू लुक फॉरवर्ड टू दैट व्हाटएवर दैट पेनेंस इज, आप उसको विलिंगली करोगे एंड यू विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दैट, और फिर आपको अगले जीवन में आपको मोक्ष पाने में सहायता होगी इसके चलते। पाप तो हर किसी से होगा, ये तो हम नहीं मान सकते, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन अगर इन पापों के मैग्नीट्यूड के अंदर कोई डिफरेंशिएशन ना किया जाए, ग्रेस सबको मतलब अब वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ जी, नहीं प्लीज भैया कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि अगर ग्रेस को आप किलो दर से बेचोगे ना, कि आपके लिए भी 1 किलो का ये प्राइस है, 10 किलो का भी वही प्राइस है, तो फिर दैट इज नॉट अ गुड सिस्टम मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपको चोरी पे भी आपको वही ग्रेस करना है, और मास मर्डर करोगे, सीरियल मर्डर किया तो तो वही exactly. ग्रेस है। हाँ, है ना, एग्जैक्टली तो ग्रेस के बाद सब कुछ समान हो जाता है। ग्रेस हाँ, के सब बाद कुछ किसी समान। मर्डरर और किसी एक छोटे से झूठ बोलने वाले में या अच्छा जीवन जीने वाले में कोई डिफरेंस नहीं हो जाता। तो ग्रेस बहुत बुरी चीज है यार, जो कि इस तरह के डिफरेंस को खत्म कर देता है, जो कि नेसेसरी है। आपको बुरे कर्म का फल मिलना चाहिए, ये जस्टिस है। हाँ जी बिल्कुल। So somehow they're going to suffer worse because they're worse people, and let's ostracize them. Versus this sweet lady who's supposedly living for I greatness. mean, not necessarily, because you say that like your parents are addicts, so you're an addict, and like you're like doing drugs, everything. That can be understandable because of the origin that you come from, like your parents. But the thing that's gonna cause your karma is the actions you take, being that person. It's not necessarily what you start from. Do you know what I mean? Like every person is responsible for their own actions. Just because like you may have a tougher background, like that's obviously taken into consideration. Like I don't know all that, but what I grew up knowing is that it isn't. It's your personal actions that cause like your like course for the rest of your life. Like obviously, if you do something good, like something good will happen to you. Or like you're making your own life better. But if you do something bad, then that's gonna catch up to you. Right. Okay, and I can totally get on board with that. Sure. Sin follows us in many ways. Yeah. So it's not from like just because. एक बार पॉज करो। हाँ, कोई खास पॉइंट नहीं है यहाँ पे, बस मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इतना सब ग्रेस बोलने के बाद में ये कैसे कह रहा है कि आई कैन गेट ऑन बोर्ड विद दैट, लेकिन लाइक बहुत अच्छा वो दिया रिप्लाई दिया कि ये लाइक बहुत वो प्रीवियस उससे चलता है, कर्मफल से चलता है। पहले के रिलेटेड आपके कर्म होते हैं और उससे जो है आगे के लाइक आपका होता है। ये कैसे कह रहा है कि आई कैन गेट ऑन बोर्ड विद दैट, जबकि इसके पहले इसने टोटली अपोजिट बात की है ना? जी है ना भैया? एग्जैक्टली। प्ले करो जी। नहीं एक्चुअली वही तो sin follows us in many ways. पॉज करो। आप अगर क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी देखोगे तो ये अचानक से ये शिफ्ट भी आपको दिखेगा। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में आपको दिखेगा कि भाई आपने कोई गलती की तो आपको नहीं, आपके चारों पीढ़ियों को आप आपकी आने वाली चारों पीढ़ियों को भी उसकी सजा दी जाएगी। ठीक है, तो दैट वाज द स्टैंड। वो तो कर्मफल प्रो मैक्स था वहां पे। ठीक है, आपने कुछ गलत किया होगा या फिर मेनली इन्फेरिटी अगर आपने की होगी तो फिर उसकी जो उसका जो पनिशमेंट है आपके आने वाले पुरखों को भी मिलने वाला, सॉरी आपके आने वाले जो जनरेशन है उनको भी मिलने वाला है। ठीक है, तो पुश्तों को भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। न्यू टेस्टामेंट के अंदर ये ग्रेस का सिस्टम आ गया जहां पे आप कुछ भी करो, आप एक बार रिपेंट कर लो और मेरी शरण में आ जाओ, फिर आपको कोई आपको कुछ चिंता नहीं है, लाइफ को लेकर कोई चिंता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये एक डाइकोटमी एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में। तो तभी ये जब कहते हैं कि आई कैन गेट ऑन बोर्ड विद दैट सिन फॉलोज, दिस इज बेसिकली अ ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में ग्रेस इज
the grace is believing in Christ's sacrifice and using that for salvation. हाँ play करो। इसमें भी कैसा है कि ब्लेंडर है ओल्ड टेस्टामेंट Yeah. Not from रुक जाओ हाँ बोलिए। इसमें भी कैसा है कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी आपस में दो जगहों पे कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह स्टार्टिंग में इन द एक्सोडस में याहवे ने ये रूल दिया है, इफ यू आर गोइंग टू वर्शिप अनदर डेटीज एक्सेप्ट याहवे, तो तुम्हारी 3 जनरेशन को याहवे पनिश करेगा। बट जब हम और आगे बढ़ते हैं बुक ऑफ इज़ेकियल के तरफ में, तो वहां पे गॉड ने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, जो जैसे एक्शंस करेगा उसी को ही पनिशमेंट मिलेगी। इन द फैक्ट दैट अगर फादर कोई एक्शन करता है तो उसकी सजा सन को नहीं मिलेगी, सन जो एक्शन परफॉर्म करता है उसकी सजा फादर को नहीं मिलेगी। दोनों अपनी इंडिविजुअल जो एक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट उन्हीं को मिलेगी। और ये पॉइंट आ जाता है इसमें एक और, यहाँ पे बोला गया हुआ है ब्लेंडर आता है, जैसे कि ये बोला जाता है कि आप तो को कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन तो बिल्कुल पता ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन कैसे है। उसमें क्या होता है, ये बोला जाता है कि जो एडम और ईव ने जो सिन किया था सबसे पहले फ्रूट को खा के, उसके कारण दुनिया के जो भी सारे ह्यूमन पॉपुलेशन है अभी वो सिनर है। क्यों? क्योंकि एडम और ईव ने जो फ्रूट लिए थे और वो खा लिए थे। भाई यहाँ पे सिन कर रहे हैं एडम और ईव, तो उसके कारण मुझे क्या हो रहा, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया हूँ ना। अगर मैंने कोई सिन किया होता तो आई वाज अ सिनर, बट बिना कुछ सिन किए आप सिनर कहला सकते हो जस्ट इन अ क्रिश्चियनिटी। क्यों? लॉजिक बिल्कुल लगाना नहीं। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल पॉइंट है। अगर चोरी मतलब एक्शन किसी और ने परफॉर्म किया और इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये किस तरीके की लॉजिकल सेंस हो गई? वो जो ये कहते हैं ना पाप यूनिटी वाला। हेलो हाँ आवाज आ रही है मेरी। अरे यार ओके, मुझे किसी ओके हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट एक आर्गुमेंट आता है ब्रॉली, मैंने जब तुमने सही कहा कि लाइक वो इटर्नल सिन वाला कॉन्सेप्ट है कि वो सिंफुली पैदा होते हैं, बट एक आर्गुमेंट आता है इनकी तरफ से इसके काउंटर में, वो ये आता है कि और उस काउंटर को भी हम खत्म करते हैं। काउंटर ये आता है कि सिंफुल है नहीं, बट सिंफुल नेचर के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम सिन करेंगे। ये काउंटर सुना है तुमने कभी? हाँ मैंने ऐसे सुना हूँ, ये भी कई सारे आर्गुमेंट्स में से आता है, बट हाँ लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है, प्रॉब्लम इसमें है ब्रॉली कि ठीक है सिंफुल हम लाइक सिन हमने नहीं किया, हम सिंफुल पैदा नहीं हुए, लेकिन सिंफुल नेचर के साथ पैदा हुए हैं। और सिंफुल नेचर का कॉज क्या है? सिंफुल नेचर का कॉज भी जो है वो आपका एडम का वो सिन करना ही है, राइट? तो इसमें भी आपके सिंफुल नेचर का कॉज जो है वो कोई और बन रहा है, तो ये भी इनजस्टिस है ना? ये भी इनजस्टिस है। और जहां तक मैं इसमें एक और पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बोला जाता है कि भाई उन लोग के पास में फ्री विल थी। मैं बता दूं, क्रिश्चियनिटी में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। इस चीज अगर कोई जानना चाहता है कि क्रिश्चियनिटी में फ्री विल एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया हूँ जीसस प्लान नाम से। उसमें मैंने बताया हूँ क्रिश्चियनिटी में कि मतलब कि कैसा एडम और ईव का सीन करना, उन लोगों का गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाला जाना, कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ना, जीसस का इस अर्थ पे आना, जीसस का जो है सेक्रीफाइस होना, ये सब कुछ एक वेल प्लान था, बिल्कुल एक वेल अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है ये सब कुछ। मैंने उस वीडियो में बताया। तो क्रिश्चियनिटी में ये ना जो ये फ्री विल बता के जो भागने की कोशिश करते हैं, तो भाई उसमें फ्री विल नहीं है। सारी चीजें एक वेल प्लान थी बराबर, सब कुछ स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग, और सारी चीजें वैसी ही हुई है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। मनुष्य पपेट्स है बेसिकली भगवान के हाथ में। बिल्कुल कुछ ऐसा। फटाफट से वीडियो खत्म कर लेते हैं, उसका फिर कुछ रेफरेंसेस वगैरह दिखाएंगे रिलेवेंट, और फिर चलते प्ले कर। like just because it's not like you're written a bad fate, you know what I mean? Like you can always turn it around. Does that make sense? Right.
And yet, at the same time, there is a big difference between grace and forgiveness in the Christian faith versus in the Hindu faith. You still are determined by your bad deeds. It's a type of determinism. I mean, yeah. Whether it's accumulation of me when I was in high school and I was living a very partying type lifestyle versus perhaps more so now, I don't know, maybe I am better ethically. I mean, that's true, like, but in a sense, like, it's also, like, just like you guys repent, like, you can go to the temple, like, you can pray, like, there are certain religious rituals that you can do that better your एक बार karma, pause but करना, don't एक बार pause erase it. एक छोटा सा पॉइंट इसमें उठाया है कि इट्स काइंड ऑफ अ डिटर्मिनिज्म। वेल, आपके जो पुराने एक्शंस हैं वो आपके लिए सर्कमस्टेंसेस पैदा करते हैं, बट उन सर्कमस्टेंसेस पे आप किस तरीके से एक्ट करते हैं ये आपका अपना स्वयं का डिसीजन होता है। और इस डिसीजन से आपके आगे आने वाले जो आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस है वो आगे वाली आने वाली परिस्थितियां जो है वो तय होती हैं। तो नहीं है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म कहना गलत है। ये पॉइंट बिल्कुल कुछ कहना भी आप बिल्कुल। जैसे जैसे आप अगर मान के चलो कि कोई एक बच्चा जो है वो ब्लाइंड पैदा होता है, ठीक है, लेकिन वो अपने हैंडीकैप को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, वो पढ़ाई करता है, वो आगे बढ़ता है। जैसे हमने एक मूवी देखी थी ना, ये अभी रिसेंट आई थी, श्रीकांत नाम की एक मूवी आई थी, या फिर हमने हेलन केलर की भी स्टोरी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हेलन केलर की आप सोचो उसकी जिंदगी क्या थी। उसको ना तो उस स्पीच की नेमत थी उसे, ना तो साइट की नेमत थी, मतलब बिल्कुल ही दुनिया उसकी ब्लैक थी। और लेकिन फिर भी वो स्कॉलर बनी, वो पब्लिशर बनी, उसने इस हैंडीकैप को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो डेफिनेटली अगर आप अपने जो सिचुएशन आप ये एक आप मान सकते हो कि एक लॉटरी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव इनकर्ड इन योर पास्ट लाइव्स। उसके पर आपको एंट्री मिलती है, लेकिन वहां से अगर एग्जिट आप एक हायर मैदान पे ले सकते हो, तो आपको जो अलग जो नेक्स्ट आपको लाइफ मिलेगी, या तो फिर उसमें आपको लिबरेशन मिल जाएगा, या फिर आपको एक फार मोर कंफर्टेबल बेटर लाइफ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो एफर्ट दिखाया, आपने खुद को उस नरक से या फिर उस डार्कनेस से आपने खुद को उठाया है। तो ये भी एक टेस्ट ही है। बिल्कुल जी। हाँ, मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि पास्ट जो आपके कर्म होते हैं वो आपके लिए सर्कमस्टेंसेस तय करते हैं। उस पर आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं जी, वो आगे आने वाली आपकी परिस्थितियों को तय करती है। सिंपल सा पॉइंट है, कोई डिटर्मिनिज्म नहीं है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। डेथ पूरा फ्री विल का ही Okay. खेल है। Okay. So it's not like just because you do this, it's in your like permanent record forever, like it's etched forever, so now you're gonna die. Like it's not like that. Okay, let's go to the caste system now. Why did I have that very awkward encounter with those two women, who one was higher up than the other? The Christian faith we were talking about out here yesterday, which is everybody. It doesn't matter if you have a lower level of awareness or cognitive abilities, which I'm probably lower than you, and or you're born with special needs, whatever the issue might be. We are all created in the image of God, absolutely equal. We do not have to somehow prove our self-worth, prove and get my value. पॉज करो, कुछ कह रहे हो ब्रॉली? पीसिंग भाई एक काम करिए, आप हिंदुइज्म का पॉइंट रख दीजिए अगर आपको रखना होगा तो, नहीं तो फिर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, क्योंकि आपके हाँ, हिंदुइज्म की कास्ट सिस्टम की बात हुई है। ठीक है, मैं वो रखता हूँ। और फिर ये भी कह रहा है कि लाइक ऑल मेन आर क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड, यानी सारे इक्वल हैं, राइट? तो उस पे तुम कुछ वो रेफरेंसेस दिखाना चाहोगे? हिंदुइज्म पे हम दिखाएंगे। हिंदुइज्म पे लाइक कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में, और फिर कह रहे हैं कि अलग अलग पैदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल वो होना चाहिए, राइट? सबसे पहले तो मैं बिलीव नहीं करता कि सबको इक्वल होना। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे क्विकली ऐड कर देता हूँ पी सिंह जी। ये क्वेश्चन की वो गया ही क्यों कास्ट सिस्टम के ऊपर? उसने देखा कि ये लास्ट वाला जो डिबेट था वो बेसिकली वहां पे उसको ऑन बोर्ड होते होते बेसिकली वो गाड़ी पे चढ़ गया, ठीक है। वहां से फिर उसको उतरने का कोई स्कोप नहीं मिला, ठीक है। तो फिर मतलब ये क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ऐसा एरिया हो जाता है कि जहाँ पे आप एक इजीली टारगेट कर सकते हो हिंदूज को। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। और सबसे पहले तो ऑल में लाइक सारे लोग इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि सारे लोगों के कर्म जो है वो डिफरेंट होते हैं, और कर्मों के आधार पे आपको फल मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो वहां पे इक्वालिटी, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको उसमें ट्रैप कर लिया जाता है, लाइक रिजिड हो जाता है जब, ठीक है। पहले तो कास्ट सिस्टम जैसा कुछ है नहीं, वर्ण है, और वर्ण अगर रिजिड हो जाए, यानी कि आप अगर किसी कुल में पैदा हो गए और आप फिर वहीं पे फंस के रह गए, प्रॉब्लम वहां होती है, ठीक है।
अगर मोबिलिटी की आपको फ्रीडम मिल रही है तो वर्ल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल फेयर है वो। हाँ ब्रॉली, आप बताओ। हाँ, मैं तो एक बहुत ज्यादा बोल रहा था कि यहाँ पे बात हुई अभी इस पॉइंट में इक्वलिटी की। इसमें तो इक्वलिटी के केस में भी देखा जाए क्रिश्चियनिटी में तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में खुद इक्वलिटी मानी नहीं जाती है। क्रिश्चियनिटी में ही कई सारा डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म जरा मिलता है। तो ऐसा क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं ब्लैक क्रिश्चियन और व्हाइट क्रिश्चियन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म बिल्कुल होता है। वहां पे लोग एक के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट में फाइट करना शुरू कर देते हैं, और ये ऐसी बात नहीं है। आप इसको इंटरनेट से भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इंटरव्यूज अवेलेबल है, जहाँ पे पीपल ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर इन क्रिश्चियनिटी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे ऐसा आता है कि यहाँ पे हमेशा बिल्कुल एग्जांपल दिए थे जेनेसिस का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27 का, कि ऑल द ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसमें कैसी बात आ जाती है कि गॉड ने हमको अपनी इमेज में बनाया। मतलब कैसा कि गॉड ने हमको अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में बनाया, तो ठीक है, तो इसका मतलब गॉड का एक फॉर्म हुआ। अगर गॉड ने ह्यूमंस को अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में बनाया है तो भाई गॉड तो मेल है, मतलब जीसस तो मेल है और यहाँ पे दोनों के दोनों मेल है। तो फीमेल को भाई फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं होता, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका फीमेल स्ट्रक्चर मैच नहीं होता फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि गॉड हैज मेड द ह्यूमंस ए मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, क्योंकि जस्ट बिकॉज जीसस एक मेल है, यहावी भी मेल है, तो भाई वो फीमेल और तो जो ट्रांसजेंडर पीपल है उनके इसमें तो भाई फिजिकल स्ट्रक्चर उससे मैच होता है ही नहीं, ये ब्लंडर है। और सेकंड पॉइंट को ये बोलता है गॉड ने हमें अपनी इंटरनल इमेज में बनाया। तो गॉड की इंटरनल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल नोइंग, ऑल नोइंग होती है, ऑल जस्टिसफुल होती है, और वेरी इंटेलिजेंट होती है। तो हम देखते हैं ना ही हम ह्यूमंस ऑल नोइंग है, ना ही हम ऑल इंटेलिजेंट है, ना ही हम ऑल जस्टिसफुल है। तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर आता है, और इस चीज का भी रिबटल मैं पहले रिफ्यूट मैं पहले कर चुका हूँ। तो मतलब कि ये तो एक बहुत बड़ा टेक्निकली बहुत बड़ा ये मतलब क्या बोलते हैं कि मैं उसे एक मैं वर्ड कैच नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, कि मतलब कुछ भी बोल देना कूल दिखने के लिए कि भाई ऑल द ह्यूमंस आर क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज। तो भाई ये बात बताओ कि अगर ह्यूमंस में भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस देखने को मिलती है, जैसे कि वेस्ट के तरफ में लोग काफी फेयर होते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, जो अफ्रीकन पीपल होते हैं वो समवॉट ब्लैक होते हैं, चाइनीज पीपल हैव डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर, जापानीज पीपल हैव डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर। तो भाई ये सब कौन है? इनको किसी एलियन ने बना के गया है क्या? किसी एलियन ने तो बनाया है नहीं इनको, अकॉर्डिंग टू योर क्लेम। तो इतना वास्ट वेराइटी ऑफ डिफरेंस कैसे? ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। रेज होता है। और ये रेफरेंस इसको तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे ब्रॉली, क्या है ये? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यह है बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट, और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है, ये है भाई कौन सा है, एक तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है इसका। जर्मिया 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 13। हाँ, जर्माया के चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 23 है। यहाँ पे लिखा गया हुआ है, कैन एन इथोपियन चेंज हिज स्किन कलर। तो यहाँ पे इस वर्स को आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इथोपियन जो वर्ड हुआ है वो इथोपिया के पीपल के लिए यूज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं इंडिया, इंडियन, जापान, जापानीज, एशिया, एशियन। तो सेम इथोपिया है, एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में लोकेट होती है, और साउथ अफ्रीका पे कंट्री में जो पीपल रहते हैं उनको बोला जाता है इथोपियन। और जो साउथ अफ्रीका के जो पीपल होते हैं वो होते हैं ना ब्लैकिश इन बॉडी कलर। तो इस वर्स में देखिए कैसा एक इथोपियन पीपल को एज अ बैड एग्जांपल यूज करके पोर्ट्रे किया जा रहा है कि क्या एक इथोपियन पीपल जो काले ब्लैक पीपल होते हैं अपना कलर कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रूली एक तरीके से रेसिज्म है यहाँ पे, कि एक ब्लैक पीपल का एग्जाम्पल यूज किया गया हुआ है एज ए नेगेटिव वे में। तो यहाँ पे तो गॉड यहाँ पे रेसिज्म दिखा रहा है यहाँ पे। और सेकेंडली चीज देखी जाए कि क्रिश्चियनिटी में इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। ये हर एक क्रिश्चियन को पता है कि बिलीवर क्या होता है और नॉन बिलीवर क्या होता है। क्रिश्चियनिटी में भी दो तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, एक बिलीवर एक नॉन बिलीवर। जो भी इंसान जीसस में बिलीव करता है और क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है वो बिलीवर है। और सेकेंडली चीज, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता है और जो क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स में नहीं मानता है वो नॉन बिलीवर है। बीइंग एन थीस्ट, अगर आप एक थीस्ट है फिर भी आप जीसस में यकीन नहीं करते हैं तो आप एक नॉन बिलीवर है। और नॉन बिलीवर की भी बहुत अलग अलग बातें ली रही है, जैसे 2 Corinthians चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14। वहां पे क्रिश्चियंस को बोला जा रहा है
कि तुम किसी नॉन बिलीवर से दोस्ती मत करो। तुम्हें दोस्ती क्यों नहीं करना है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फेथ, क्योंकि वो जीसस में यकीन नहीं करता है और तुम जीसस में यकीन करते हो। तो यार डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे भी एक सम सॉर्ट ऑफ है। जी मेरा पॉइंट इतना ही था। थैंक यू। कुछ ऐड करना है किसी को? रिटर्न भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, तो ये शायद ब्रॉली भाई जो है वो कंफर्म भी कर पाएंगे। जब हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जब क्राइस्ट बेसिकली अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे ना, जो लोगों की सेवा कर रहे थे वगैरह, तो वहां पे हमको दो इंस्टेंसेस मिलती है। एक जब वो एक कैनानाइट वुमन, तो एक यहाँ पे रेसिज्म का कॉन्सेप्ट अंदर से दिखता है कि एक कैनानाइट वुमन आती है उनके पास कि उसकी बेटी को शायद कोई बीमारी हो गई थी, और उन्होंने ये मांगा कि भाई जीसस क्राइस्ट आप एक बार चलो मेरी बेटी की जान बचाओ। ठीक है, तो वहां पे एक कॉन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन जीसस एंड दैट लेडी, जहाँ पे उसने बोला कि भाई मैं तो सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए आया हूँ। मैं जो लैम के लिए जो खाना होता है वो कुत्तों को क्यों बांटा जाए, ये ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। तो उस लेडी ने बहुत विटली जवाब दिया था कि जब मास्टर के टेबल पे जो स्क्रैप्स होता है उस पे कुत्तों का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो इससे जीसस क्राइस्ट काफी इम्प्रेस हो गए थे, और फिर उन्होंने उस लड़की जो उसकी बेटी थी उसकी जान बचाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्वर्सेशन पे आप ध्यान दोगे तो एक रेसिज्म का आपको अंडरटोन मिलता है कि एक कैनानाइट वुमन को डॉग से कंपेयर किया जा रहा है, और वो लेडी जो है उसको उस ह्यूमिलेशन को वो हजम कर लेती है, क्योंकि उसकी जरूरत है ना, तो वो उस ह्यूमिलेशन को हजम कर लेती है, तो उसको फेथफुल माना जाता है। और एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे वो अपने डिसाइपल्स को कहते हैं कि आप मिनिस्ट्री करो, जगह जगह जाके आप मेरी बात कहो, लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि आप कभी सैमरिटन्स के वहां पे मत जाना और कैनानाइट्स के वहां पे मत जाना, और उनकी सेवा मत करना। ठीक है, तो ये दो आपको बहुत क्राइस्ट के लाइफ टाइम में आपको ये जो डिफरेंशिएशन आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आफ्टर द रिजरेक्शन ये माना जाता है कि उन्होंने ये बोला कि भाई मेरा जो मैसेज है उसको सारी दुनिया में फैलाओ और सबके पास लेके जाओ। ठीक है, तो ये जो इगैलिटेरियन वाला जो है ये आफ्टर क्रूसिफिक्शन का एक सिनेरियो है, जो ना तो ओल्ड टेस्टामेंट से बेयर आउट होता और ना ही न्यू टेस्टामेंट में जीसस के अपने ही मतलब कर्मकांड से वो वेरीफाइड होता है। यानी ब्रॉली जीसस के आप अपने मेरे से actions। अग्री करेंगे कि नहीं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दो आपने स्टोरीज बताई हुई वो बिल्कुल सही है कि जीसस के पास में एक कैनानाइट लेडी आती है जीसस की हेल्प मांगने के लिए। तो जीसस वहां पे जो नॉन इजराइलाइट है उसको डॉग कह के रेफर किया करा करता है, कुत्ता बोला करता, डॉग बोला था वहां पे। वो जो कि नॉन इजराइलाइट्स पीपल है उस समय के उन लोगों के लिए, मतलब रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी है एक्सेप्ट इजराइलाइट, तो जीसस ने वहां पे उनको डॉग रेफर कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही डिसीजन की। ये मैं आपको बेसिंग भाई, आप क्या रेवलेशन का चैप्टर नंबर 22 को ओपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, रेवलेशन का चैप्टर नंबर 22। बाइबल गेटवे से ही करना है। हाँ, बाइबल गेटवे से रेवलेशन का चैप्टर नंबर 22 ओपन कर दीजिए। रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद तो मुझे बताना क्या करना है। अच्छा, स्क्रीन ऑलरेडी शेयर। तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ कि जो बाइबल के जो ये वर्सेस है वो नॉन बिलीवर्स। बताओ ये कहाँ से करना है? यहाँ से? हाँ, तो चैप्टर वर्स नंबर 15 पे जाइए। कौन सा एक्सोडस? रेवलेशन सबसे आखिरी बुक, न्यू टेस्टामेंट की सबसे आखिरी बुक। अच्छा अच्छा अच्छा। चैप्टर नंबर 22, लास्ट चैप्टर। तो इसमें जाइए वर्स नंबर 15 पे। मेरे तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या टीवी का? थोड़ा आ रहा है बट कोई इशू नहीं है, बताओ। और मूवी देख रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वर्स नंबर 15 पे क्या लिखा जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर दीजिए। Outside are dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves the practice and practices falsehood. Falsehood basically जो भी नॉन क्रिश्चियन बिलीव्स के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रेवलेशन चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? आउटसाइडर्स आर डॉग्स, मतलब जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में यकीन नहीं करते हैं, दोज आर डॉग्स हु परफॉर्म, मूर्ति पूजा परफॉर्म करते हैं, विच क्राफ्ट परफॉर्म करते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी नहीं चलते हैं। तो उनके लिए बाइबल के लिए ये क्या वर्स बोला गया हुआ है?
अब यहाँ पे जो फॉल्सहुड बोला गया हुआ है उसका मतलब क्या होता है? पहली चीज, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्सहुड है। तो यहाँ पे रेवलेशन का चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 15 दुनिया के जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उन लोग को डॉग बोलता है। ये है बाइबल का डॉगमेटिज्म। ये है इगैलिटेरियन व्यू, ये है इक्वालिटी का व्यू बाइबल का, क्रिश्चियनिटी का। वीडियो फटाफट से खत्म करते हैं जो प्ले करो। Value That's so by any kind of means necessary. Instead, no matter what, our value doesn't change because of what Jesus did for us on the cross. In my understanding in Hinduism, that's not the case. Yeah. You are born into a type of caste system where you are better than somebody else who was born into a different caste system. Yeah, well, like, to be honest, like, I don't believe in the caste system, so, like, I agree. Okay. In the Christian faith, your bad deeds can follow you if you just keep living in sin, making poor decisions, but you're never too late to turn and accept Christ, just like the thief on the cross, and Christ turns to him and says, "Today you will be with me in paradise." ओके, सो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कास्ट सिस्टम से, और फिर जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप कभी भी जो है जीसस की तरफ टर्न हो सकते हैं। तो डिफरेंस दिखाते हैं इसमें। बेसिकली कास्ट अगेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट जो वर्ड है वो आपको उसके कारण लाइक प्रीवियस कर्मों के कारण आपको एक कुल मिलता है, बट कर्मफल में भी, इस सिस्टम में भी कभी भी लेट नहीं होता आपके लिए टर्न आउट करने के लिए। यानी कि अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हैं पहले से, तो हम लाइक इनफैक्ट हमारे वाले में तो इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली, इवन आफ्टर यू डाई। आपके वाले में तो वंस यू डाई उसके बाद तो फिर जहन्नम है ना। हमारे वाले में तो इट्स एक्चुअली नेवर टू लेट। आप कभी भी अपने कर्म सही कर सकते हैं, और फिर उसके कारण जो आगे वो कर्म फलित होंगे वो अच्छे कर्म के फल मिलेंगे आपको, और इसीलिए आप बेटर लाइफ की तरफ लीड करेंगे। तो इट्स एक्चुअली नेवर टू लेट इन हिंदुइज्म, बट क्रिश्चियनिटी में वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इसमें एक और ब्लंडर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो एक देखेंगे कि आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है। मैं एक ब्लंडर पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हर एक क्रिश्चियन पीपल का ये फेथ होता है कि जीसस डाइड फॉर माय आवर सिंस। जीसस मेरे लिए अपने सूली पे चढ़ गया। जीसस डाइड फॉर माय सिंस, जो मेरे सिंस थे इसलिए जीसस अपने आप पे लेके मर गया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू बाइबल इटसेल्फ, बाइबल खुद बोलती है कि नो वन कैन डाई फॉर अनदर सिंस, अनदर पर्सन सिंस। जिसने जो सिन किया है उसकी पनिशमेंट उसी को मिलेगी। और इसको अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो भाई ये कौन सा बड़ा लॉजिक होता है कि जीसस मेरे सिंस के लिए मर गया। अगर कोई बैड एक्शन परफॉर्म करता है, कोई सिन करता है, तो उसकी पनिशमेंट उसी को मिलनी चाहिए ना। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि जीसस मेरे सिंस के लिए मर गया। इज अ वेरी बहुत बड़ा डीप ब्लंडर बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हाँ, तो स्क्रीन पे एक और वर्स आया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा वर्स है ये भी ओपन किया आपने पीसी? ये है क्रॉनिकल्स 25, 2 क्रॉनिकल्स 25 का वर्स है। तो यहाँ पे वर्स नंबर हम 4 में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, आप इसे रीड आउट कर दीजिए प्लीज। Parents shall not be put to death for their children, nor children be put to death for their parents. Each will die for their own sin. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जो आप एक काम करिए पीसी, आप एक काम करिए, डिट्रोनी चैप्टर नंबर 24 खोल लीजिए। डिट्रोनी चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16। अच्छा, मुझे यही बोलना चाहिए था। डिट्रोनी कौन सा चैप्टर वर्स नंबर? डिट्रोनी चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो थियोलॉजी है और जो फिलोसॉफी हम कोई भी बोल सकते हैं, तो उसकी ये बोलना है कि अगर किसी ने सिन किया है तो उसकी पनिशमेंट उसी को ही मिलेगी, ना कि किसी ने सिन किया है उसकी पनिशमेंट किसी और को नहीं मिल सकती है। इसलिए हम जो जूइश रिलीजन होता है, जूइश रिलीजन और जो जूइश ट्रेडिशन होता है, जूइश रब्बाई इस बात को बिल्कुल बोलते हैं कि जो सिन करता है उसकी पनिशमेंट उसी को ही मिलेगी।
और ये इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि जीसस किसी के सिंस के लिए मरा, क्योंकि ज्यूश ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं माना जाता, ये ब्लंडर है। तो हम यहाँ पे डिट्रॉनी की बुक में भी देख सकते हैं, ये वर्स नंबर 16। हाँ, आप इसे रीड आउट कर दीजिए प्लीज। सेम लिखा है, पेरेंट्स आर नॉट टू बी पुट टू डेथ फॉर देयर चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन पुट टू डेथ फॉर देयर पेरेंट्स, ईच विल डाई फॉर देयर ओन सिन। हाँ, तो यहाँ पे हमने ओल्ड टेस्टामेंट के 2 वर्सेस देखे, और एक आता है इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18। जो बुक ऑफ इज़ेकियल है उसका चैप्टर नंबर 18 है, वो इसके लिए डेडिकेटेड है पूरा, कि अगर किसी ने सिन किया है तो उसकी पनिशमेंट उसी को ही मिलेगी। तो ये एक क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। भाई जीसस मेरे सिंस के लिए नहीं मरा, और जीसस मेरे सिंस के लिए अकॉर्डिंग टू बाइबल भी नहीं मर सकता। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये तो एक टाइप पे क्या हो जाता है कि लोगों को डिपेंडेंसी दिखाने की कोशिश होती है कि ये देखो तुम एक सिनर हो, अगर तुम जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि जीसस तुम्हारे लिए मरा, तो तुम सिनर ही बने रहोगे। मतलब क्या होता है कि एक बता देना कि भाई तुम्हें बीमारी है और उस बीमारी का इलाज सिर्फ मेरे पास में है, तुम दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, वो तुम्हें नहीं बता पाएंगे तुम्हें कौन सी बीमारी है, भाई तुम्हें वो ठीक कर पाएंगा, पर सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ भाई तुम्हें कौन सी बीमारी है, और उसका इलाज भी मेरे पास में ही है। इन द सेम वे क्रिश्चियनिटी का है। क्रिश्चियनिटी तुम ये बोलेंगे तुम एक सिनर हो, तुम्हारा जो सिन है तुमने किया है, उससे फ्री होने का तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है, तुम जीसस को एक्सेप्ट करो। अगर तुम जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम ऐसे सिनर ही बने रहोगे। मतलब सिन को कंपेयर कर सकते हैं बीमारी से, और उसके क्योर को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे तुम सिनर हो, मेडिसिन सिर्फ मेरे पास किसी और रिलीजन में है, सेल्फ इन्वेंशन एंड सेल्फ क्योर ऑफ डिजीज। यानी डिजीज खुद बना करके, ये किसी मूवी में आई गेस होता है ये कि कोई बहुत इविल सी कंपनी होती है और फिर वो एक वायरस बनाती है और फिर उस वायरस का क्योर भी खुद बनाती है और फिर बहुत सारे पैसे कमाती है। तो आई गेस प्रॉब्ली वही कह रहा है ना। अरे ये तो वही था। इसको अगर किसी को सादी सिंपल एनालॉजी से समझना है तो भाई वो क्रिश 3 देख सकते हैं, वहां पे क्रिश 3 में बिल्कुल एग्जांपल है इसका। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत सारी ज़ॉम्बीज मूवीज में ये मिलता है कि कोई कॉर्पोरेशन होता है जो कि इस तरह के एक इविल वायरस को बनाता है और उसका क्योर भी खुद ही वो करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इनफैक्ट सारे अब्राहमिक फेथ्स जो मोनोथेइस्टिक फेथ्स होते हैं जो ये कहते हैं कि केवल हमारा वाला गॉड है वो आपको हेल से बचा सकता है, वो बेसिकली अपना ही एक हेल बनाते हैं, उस हेल के लिए रूल्स बनाते हैं और फिर क्योर भी उसके लिए खुद ही बेचने निकल जाते हैं। परफेक्ट। वीडियो खत्म हो गई है या कुछ बची है? वैसे अभी दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट जितने लोग भी देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने देख ही रखे होंगे, राइट। गीता 4:13 है, आई गेस 9:36 भी है, जहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि वो किसी भी तरह के लाइक किसी भी योनि में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और सारा कुछ जो है वो गुण और कर्म के आधार पे। तो स्क्रिप्चरल एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, दिखते हैं, इतिहास से दिखते हैं। जो पंथ हैं अलग अलग हिंदुज्म के, उनकी प्रीचिंग्स या उनकी टीचिंग्स आप देख सकते हैं और उसमें भी आपको डिस्क्रिमिनेशन को लाइक उसके अगेंस्ट ही आपको चीजें मिलेंगी। वीडियो जो है वो समाप्त हो चुकी है, वीडियो रख करके कोई फायदा नहीं, उसको हटाते हैं। लास्ट कुछ पॉइंट्स लेते हैं और फिर एंड करते हैं। ब्रॉली आपको को आई गेस लेट हो रहा है, ब्रॉली आप अपना पॉइंट रख दीजिए। ये मेरे पॉइंट तो ये है बोलने का इसका कि मतलब कि सेंस ऑफ जो क्रिश्चियनिटी के जो भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, जीसस मेरे सिंस के लिए मर गया, एवरीवन इज इक्वल इन क्रिश्चियनिटी, वी आर मेकिंग द इमेज ऑफ गॉड एंड एक्सेट्रा, ये भी सारे क्लेम रहते हैं उन्हें कि खुद से बाइबल ही डिबंक कर देती है। न्यू टेस्टामेंट जितने भी आधे क्लेम्स है, मेजोरिटी ऑफ क्लेम्स है, उसको ओल्ड टेस्टामेंट डिबंक कर देती है। और हम जो देखते हैं पहली चीज लॉजिकल फैलेसीज होती है, बहुत सारे क्रिश्चियन प्रीचर्स कमिट किया करा करते हैं कि चीजों को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ले जाना, या फिर पहले से एक प्री सपोजिशन ले लेना कि हमारे साथ हम जो पैरामीटर सेट करते हैं उसी के हिसाब से चीजें जज होनी चाहिए, तो चीजें ऐसी ऐसी होती है। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा जितनी भी सारी हमारी ऑडियंस रहने वाली है कि आप किसी भी चीज में बिलीव करते हैं, नो मैटर आप किसी भी चीज पे बिलीव करिए, बस आपका फेथ किसी भी चीज को हार्म नहीं करना चाहिए, आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। और सेकंड चीज, आप अगर किसी भी चीज पे बिलीव करते हैं, आप अपने बिलीव को क्वेश्चन करिए, क्वेश्चनिंग करने के बाद लॉजिकल आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए।
ऐसे नहीं कि भाई मैं किसी फेथ को मानता हूँ तो दैट विल बी द अल्टीमेट रियलिटी एंड अल्टीमेट ट्रूथ। आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके देने के लिए, आप सभी को देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। जय हिंद, बरकरार मातरम भाई। और बाकी सबसे भी हम लास्ट कमेंट्स लेंगे। एक मैं छोटी सी चीज दिखा देना चाहता हूँ। लाइक स्टार्टिंग में एक वो प्रीचिंग वाला पॉइंट आया था और इन्होंने कहा था कि प्रीचिंग तो जो है सब करते हैं और सब जो अपने अपने बिलीफ जो है वो इन्फोर्स करते हैं। तो मैं मेथड्स दिखाना चाहूंगा जो कि रिकमेंड किए गए हैं गीता में प्रीचिंग के लिए, ठीक है। और आई गेस इससे बेटर जो है वो आपको एग्जाम्पल दिखेगा नहीं कि प्रीचिंग्स आपको करनी कैसे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपको शेयर करना नहीं है या किसी को सही मार्ग पे लाने की कोशिश नहीं करनी है, बट ये पढ़ते हैं, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन बाय यू टू वन हु इज डिवॉइड ऑफ और सीरियस और डिवोशन, नॉट टू वन हु डज नॉट रेंडर सर्विस, नॉट टू वन हु डिजायर्स नॉट टू लिसन, नॉट टू वन हु केवल्स एट मी। बेसिकली हिंदुज्म में अधिकारी का कॉन्सेप्ट एक होता है। किसी भी ज्ञान के लिए आपको उसका अधिकारी होना पड़ता है। अधिकारी होने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डिमांड की जाती हैं, राइट। और अगर क्वालिटीज वो आप में नहीं है तो कोई, इनफैक्ट लोग तो आपको सीधे नकार देते हैं कि जाओ तुम सीखो मत, जाओ पहले वो क्वालिटीज डेवलप करके आओ, ठीक है। आपकी तरह नहीं कि लाइक कान में वो डाल करके और सेटन आ गया और जीसस कैन सेव यू, आप बस जीसस के शरण में आ जाएं और आपके सारे सारे गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। जी भैया। इटर्नल रिवर भैया। हाँ जी, नहीं क्लोजिंग कमेंट्स में हाँ हाँ जी, क्लोजिंग कमेंट्स के अंदर यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे ब्रॉली भाई ने कहा और शायद वो एग्जिट भी कर गए हैं कि डेफिनेटली आंकलन करना चाहिए। जो आपका जो विश्वास, जो फेथ सिस्टम है, उसको क्वेश्चन कीजिए, उसको समझिए और उसको उसके ऊपर स्टडी कीजिए। देखिए कि एक्चुअली में जो क्लेम्स होते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत सारे क्लेम्स चलते हैं जो एक्चुअली अगर ग्लोबल रिलीजन है तो आप उसको एनालाइज कीजिए, ग्लोबली एनालाइज कीजिए, कोई भी धर्म हो, कि जहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है वहां पे क्या ये सारे प्रिंसिपल्स जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या वो आपको प्रैक्टिस में दिख रहा है, क्या स्क्रिप्चरली ये एनश्राइंड है कि नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप देखें, इसको आप इन्वेस्टिगेट करें, तभी कोई डिसीजन ले अबाउट फॉलोइंग अ फेथ या फिर ज्वाइनिंग अ फेथ वगैरह वगैरह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वाली भाई ने कहा है। और ये जो लास्ट में आपने जो बात कही है, ये भी बहुत ही सटीक बात कही है कि हम देखते हैं कि यूजली क्या होता है कि जो इवेंजलिस्ट होते हैं या फिर जो मतलब एक तो मैं बोलूंगा कि एक तो इनका दावा का रहता है और एक इवेंजलिज्म का रहता है, दोनों ही बहुत एक्टिव रहते हैं। और इवेंजलिज्म के अंदर जो एक बहुत बड़ा मेरे को दिक्कत लगती है कि ये होना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, वो है कि सुपरस्टिशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और इंडिया जो है ना, जनरली एक सुपरस्टिशियस कंट्री है, लोग थोड़ा चमत्कारों में मानते हैं, ये सब है इंसानों के विश्वास के अंदर। तो क्या किया जाता है कि वहां पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, लोगों को एक मैजिक शो का तरह की तरह से दिखा के, कुछ सेटअप प्लान्स वगैरह डाल के लोगों को कोशिश की जाता है कि भाई आपके अंदर ये विश्वास आ जाए, ठीक है। ये वेस्ट में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है, वेस्ट में भी होता है, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही प्रचलित है और ये बहुत एक्चुअली इफेक्टिव भी होता है। तो वही मैं कहूंगा कि लॉजिकल थिंकिंग रखिए, साइंटिफिक माइंडसेट रखिए, भले ही आप थीस्ट हो लेकिन साइंटिफिक माइंडसेट रखिए। साइंस और रिलीजन के अंदर कभी कोई बैर था नहीं और ना कभी रहेगा, ठीक है। तो आप दिनचर्या में जो आपका यूजुअल दिनचर्या है उसके अंदर आप साइंटिफिक माइंडसेट रखिए। आपको ये मालूम है कि कोई बीमारियां जो होती है या फिर जो ऑटिज्म होता है वगैरह, ये सब डेविल्स की वजह से नहीं होता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर कुछ माइक्रोबियल फैक्टर्स होते हैं। तो ये इन झांसों में नहीं आइए और हर चीज के बारे में रिसर्च कीजिए, यही मेरा कहना होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बोला आपने भैया। रेक्सॉर। तो कंक्लूडिंग पॉइंट्स वही है, एक जनरल एक क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस का ऐसा रहता है जो मैंने जनरली एनकाउंटर किया है ट्विटर पे मोस्टली, और इटर्नल डिबगर भैया ने भी एनकाउंटर किया हुआ कि उनका एक ये रहता है स्टैंड पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट रहता है कि वो उनका पूरा बिलीफ सिस्टम इस चीज पे डिपेंड रहता है कि जीसस का क्रूसिफिक्शन वो एक ट्रू इवेंट है।
मतलब वो कुछ भी, हर चीज, हर एक आर्ग्यूमेंट को डिनाई कर देंगे इस बेसिस पे कि जिसका क्रूसिफिक्शन हुआ था एक्चुअली, क्रूसिफिकेशन कि एंड इट इज, रिजरेक्शन। हाँ, क्रूसिफिक्शन एंड रेजरेक्शन की वो दोनों ट्रू इवेंट्स हैं। उसके चलते वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट जो उनके थियोलॉजी के अगेंस्ट है, बाइबल के अगेंस्ट, सब सब रिजेक्ट करने के तौर पे आ जाएंगे। हर हर चीज, हर आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर देंगे, जितने भी लॉजिकल आप आर्ग्यूमेंट दे दो। मतलब ये एक टाइम पे क्या बोलते हैं हम लोग, इस्लाम से भी बदतर हालत पे आ जाते हैं ये लोग। और जबकि मजाक की बात यह है कि जो क्रूसिफिक्शन है और उनका रेजरेक्शन है वो भी एक बहुत ही कंटेंशियस पॉइंट है, रेजरेक्शन मेनली, कि वो सच है या नहीं हमें नहीं पता, उसके अकाउंट्स बहुत लिमिटेड है। मेनली पॉल का अकाउंट है, लेकिन वैसे भी पॉल, वी नो पॉल, हु इज पॉल, इज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, ही हैज एजेंडा बिहाइंड हिम। हम्म। तो यही था एंडिंग पॉइंट मेरा, यही था। बिल्कुल बिल्कुल। डेप्थ। इस जो अभी हमने देखा वीडियो, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू सनातनियों में काफी ज्ञान का अभाव है आज के समय में, कि कोई और बाहर से आके हमसे कुछ ऐसी चीजें जोड़ देता है जो हमारे में नहीं है, और फिर और दूसरे आके हमें यही बताते हैं कि ये भाई तुमसे जुड़ा हुआ है और इस पे तुम शेम फील करो। तो ऐसे दिन नहीं आने चाहिए, और हमें क्रिटिकल थिंकिंग और का सहारा लेना चाहिए हर एक चीज में, और हमें अपने स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए। यही मेरा कहना है अभी के लिए। हम्म। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, और जो जो आपके बुद्धि में जो बैठता है, जो आपको तर्क से सही लगता है, वही मानिए, और जो नहीं लगता है हम्म वो बिल्कुल मत मानिए। बिल्कुल सही बात है। कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि उसकी बात सुन के मान लेना है, हर एक चीज पे सोचिए और प्रश्न करिए।